If we keep rectangular loop or coil in a uniform magnetic field, so how much force, net force and torque act on it? So that we'll see. So we'll say torque on the current carrying coil, और उसको आप लूप भी ले सकते हैं, लूप in uniform magnetic field, in uniform magnetic field. So now, so torque on the current carrying coil, that is loop, in uniform magnetic field. So let us first see uniform magnetic field. Say this is north pole of a magnet and this is, say, south pole of a magnet. And we know that when we keep two magnets such that one is north, other is opposite pole called south, then there is a magnetic field of lines in between these two poles. इन दोनों के बीच में magnetic field रहेगी अगर हम इन दोनों को north and south को आमने सामने रखें. So I'll show that magnetic field with this dotted line with this red marker. Okay, so this is indicated as B because B means magnetic field and here this magnetic field is uniform. Now we'll take one loop these are just like a ring, you can say half ring. This is another half ring, B1 and B2, connected say external circuit with some EMF or you can say volt or battery. So, off it please. So here, this is the axis of rotation of this rectangular loop and it is rotating when we supply a current from a battery with certain angular velocity called omega. So now let us see this situation here. So this rectangular coil, what I have taken, I'll give the name, this is B1, B2. Now here I'll give it as P, Q, R, S. Now current flows from positive terminal to the circuit from B1 to P, P to Q, Q to R, again R to S, then S to again B2 and the battery circuit is completed, right? Okay. That means here two things are there. One is field, second one is current flowing through the conductor. Current flowing through the conductor means charge flowing, right? Conductor के अंदर कौन flow होगा? Charge, electrons generally. Okay, so here these electrons are flowing. So when they will flow, so we will apply the rule on which direction the forces are going to be act. किस direction पर length PQ, QR, RS और SP पर लग रहा है. So let us will say that the length of PQ is L. ये length हम इसे L मीटर मान लेते हैं. L मीटर मान लेते हैं. ठीक है. ये लेंथ को हम टोटल A मान लेते हैं. कितना मान लेंगे? A. राइट. सो हम यूज करेंगे अब लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. देखिए क्यों यूज करना है सर? पता करने के लिए कि फोर्स कहां लगेगा. क्यों? ऑलरेडी यू हैव लर्न दैट व्हेन वी कीप any conductor which conductor current carrying conductor in magnetic field then there is a force exert on it. अगर हम किसी भी वायर को जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, है ना? एक फोर्स लगेगा. वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, राइट? किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा. तो देखिए डायरेक्शन हम पता करेंगे लेफ्ट हैंड रूल से. करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो जनरली अगर हम देखें तो दिस फिंगर इंडिकेट्स करंट व्हेयरएज मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट्स दिस. तो जरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज माय फोर फिंगर, है ना? और करंट है ये जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है. तो आई विल से लाइक दिस. सो थंब इंडिकेट द फोर्स एक्टिंग ऑन PQ. इस वायर में PQ वायर में फोर्स किस डायरेक्शन में लगा ये बताएगा हमारा थंब. इज इट राइट? B इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. सो थंब क्या दिखाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर और कंडक्टर PQ. तो ये फोर्स कहाँ है? बोर्ड के अंदर है. दैट मीन्स इफ आई टेक वन रेक्टेंगुलर कॉइल, अगर मैं कोई रेक्टेंगुलर कॉइल ले लूँ, सो जैसे गिव मी दैट कोई रेक्टेंगुलर चीज दीजिए. ओके, सपोज स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगुलर हमारे पास में कॉइल है, ओके, जो कि ऐसे होती हुई ऐसे जा रही है. एक कॉइल है,
कॉइल यानी मतलब उसमें शेप है कॉइल का रेक्टेंगल, हम कोई भी शेप ले सकते हैं, बट जनरली हम हमारे स्टडी के लिए हम रेक्टेंगुलर पढ़ रहे हैं, फाइन। सो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। सो इन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, अब ये कॉइल ऐसे मूव करेगी, राइट। तो यहाँ पर एक वायर है, इस पर फोर्स लगेगा, तो ये कहाँ मूव होगी, ऐसे। तो किस साइड मूव हो रही है, अंदर की तरफ मूव हो रही है। मैं बोर्ड पर नहीं दिखा सकता हूँ कि, राइट, इसलिए बुक से, तो देखिए अंदर की तरफ मूव हो रही है, राइट। इट इज मूविंग इनसाइड, अंदर की तरफ, राइट। मीनवाइल उसी समय ये वाला जो है बाहर की तरफ मूव हो रहा है, राइट। सो देखते हैं कि ये कितना फोर्स इस वायर में लगा कि ये अंदर जा रहा है, कितना फोर्स इस वायर में लगा कि ये बाहर की तरफ आ रहा है, ओके। सो लेट अस फाइंड दैट। सो वी नीड टू फाइंड दैट पॉइंट हियर। सो यल हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड बी पर, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड बी पर, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो जनरली कितना लगेगा, बहुत सिंपल सा है, और याद रखिए कि फोर्स कितना लगना चाहिए, जनरली फोर्स लगेगा उस पर कितना, से फोर्स होगा बिल के बराबर, बी आई एल, तो बिल, राइट। मैग्नेटिक फील्ड बी पर रखा गया है, करंट आई फ्लो हो रहा है लेंथ यल वायर में, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगा वो एफ, अंडरस्टूड, राइट। तो उसके ऊपर फोर्स लगा एफ, ये कब, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ यल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड बी, और उसे करंट फ्लो होना चाहिए कितना, आई, इस तरीके से। अब यहाँ पर एंगल हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि भाई 90 डिग्री है, तो साइन 90 जो है 1 होगा फिलहाल के लिए, ओके। सो दिस इज द फोर्स। सो यहाँ पर यही फोर्स हमें पता करना है। सो वी कम टू नो दैट द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट इज व्हाट, इनवर्ट टू द बुक, बुक के अंदर है, तो मैं इसको ऐसे इंडिकेट कर दूं कि ये वाला जो फोर्स है इट इज इनसाइड द बोर्ड, इट इज इनसाइड द बोर्ड, राइट। एट दिस प्लेस, इस जगह पर फोर्स को अगर हम फिर से देखें तो फिर से आपका राइट हैंड रूल यूज कीजिए, बी, देन वेयर इज आई, डाउनवर्ड, नीचे कर लीजिए आई, थंब को स्ट्रेट कर दीजिए फिर। सो दिस इज डाउन, दिस इज बी, थंब इज वेयर, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ आ रहा है, आ रहा था ना बुक के केस में भी। सो इट इज कमिंग आउट टुवर्ड्स द आउट। मैं इसको कैसे इंडिकेट करूंगा बेटा, डॉट से। एंड यू नो डॉट और क्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि टू इंडिकेट जस्ट फोर्स, फोर्स इज वेक्टर फॉर्म, तो इसकी डायरेक्शन कहां पर है, तो दिस इंडिकेट, क्रॉस इंडिकेट इनसाइड द बोर्ड, डॉट इंडिकेट आउटसाइड द बोर्ड, फोर्स लग रहा है, राइट, ओके। सो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कंसीडर अ कॉइल पी क्यू आर एस व्हिच इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू, सो पी क्यू पर जो फोर्स एक्ट हुआ वो कितना होगा, फोर्स एक्ट ऑन पी क्यू इज इक्वल टू, कैसे देंगे हम उसको, उसका नाम हम कहेंगे F1 इज इक्वल टू दिस फोर्स F1, राइट, जिसके ऊपर अंदर की तरफ लगेगा, दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स, राइट, ओके। सो F1 फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल। इफ देयर इज एन एंगल देन विल से थीटा, अगर कोई एंगल बना रहा है तो थीटा। सो कैसे, जस्ट सी हियर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस दिस लाइन यू कंसीडर PS और QR। मान लीजिए आप QR को ऊपर से देख रहे हैं, इस QR को ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक अ स्ट्रेट लाइन, जो कि सेंटर में इसका एक्सेस है, और ये टोटल लेंथ A है, दैट मींस इस सेंटर पॉइंट से ये लेंथ हुआ है A/2 और ये भी हुआ है A/2, राइट। और इन दोनों पर फोर्स एक्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूंगा कि मान लीजिए ये अंदर जा रहा है तो दूसरा जो है फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, दिस फोर्स इज व्हाट, F1, देन दिस फोर्स इज व्हाट, F2, इज इट क्लियर, F2। सो दिस फोर्स डायरेक्शन हमने पता कर लिया कितना है, BL sin theta, BL sin theta is my force F1. Now, in the same way, what is the force acting on RS? RS में कितना होगा force? So, force acting on RS, force act on RS, उसको हम नाम देंगे F2, is equal to मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है, करंट I फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ भी तो L होगा, so it is also L. So here I took small l, चलिए इसको कैपिटल L कर देते हैं, so कैपिटल L, right, with जितने एंगल से ये मूव करेगा वो भी मूव करेगा सेम, that's why sin theta. ओके, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। नाउ आफ्टर सम सर्टेन टाइम, जब ये मूव करेगा, जब ये मूव कर जाएगा तब कंडीशन क्या होगी इसकी देखिए, आफ्टर सर्टेन टाइम ये कुछ ऐसे, देखिए फोर्स ऐसे लगा तो ऐसे आ जाएगा, तो कुछ बेंड हो जाएगा ये, आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम वेयर, टॉप ऑफ दिस QR, राइट, इस तरीके से। नाउ यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड देयर इज फील्ड, फील्ड यहाँ पर भी थी जिसको हम कहेंगे B, B यहाँ पर भी थी, राइट। सो नाउ B अभी भी है, और B का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, B तो परमानेंट है, फिक्स है, फिक्स है B, राइट, ओके। सो नाउ दिस इज अ QR, जो कि एक रेक्टेंगुलर का हम QR एक प्लेन कंसीडर करेंगे अब। फॉर एग्जांपल एक कॉइल, और कॉइल का प्लेन, मान लीजिए दिस इज अ कॉइल, तो इसका प्लेन कहलाया ये,
आपको खाली दिखाई देगा बट वही उसका प्लेन होगा। अगर ये कॉइल है तो कॉइल का ये प्लेन हुआ बेटा। सो इसमें अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन है तो इसका कुछ एरिया होगा, एरिया इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। इसके साथ में एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लियर हो। एरिया वेक्टर मींस अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। एक वेक्टर होगा जो मार्कर मैंने दिखाया है ब्लैक से, दिस इज द एरिया वेक्टर टू दिस एरिया, राइट, टू दिस एरिया। सो इस एरिया वेक्टर को मैं यहां पर इंडिकेट करूंगा कैसे, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए प्लेन मूव हो रहा है तो एरिया वेक्टर भी मूव हुआ, सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर है, राइट। सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, मेक्स 90 डिग्री एंगल। सो हियर ऑलवेज परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एरिया वेक्टर को मैं जनरली हम ए से इंडिकेट करेंगे, बट यहाँ पे मैं एम भी लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर आप एरिया वेक्टर भी ले सकते हैं बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो हियर एरिया वेक्टर अब मेरा यहाँ पर होगा, इज इट राइट, क्यों, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब यहां पर ये वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री, हियर आल्सो इट इज 90 डिग्री, बट दिस एंगल आई टेक इट एज, इस एंगल को अगर हम नाउ आई एम ट्राइंग टू नो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्स, ये दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। सो नाउ दिस इज, इफ आई टेक थीटा और इसको हम अल्फा माने तो क्या ये अल्फा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये अल्फा हुआ तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्यों, ये 90 है, अल्फा प्लस थीटा इज 90 डिग्री। देखिए अगर ये 90 है, ये दोनों का सम 90, यहाँ पर भी देखिए अल्फा प्लस थीटा इज कंप्लीट एंगल, दैट इज नॉट 90 डिग्री। क्या हुआ, ये अल्फा प्लस थीटा इज 90, इन दिस केस आल्सो दिस अल्फा इन दिस स्मॉल ट्रायंगल अल्फा प्लस थीटा इज अगेन 90। अगर ऐसा हुआ तो ये वाला साइड क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे व्हाट, दिस इज a/2, क्योंकि ये वाला मूव हो रहा है ऐसे, तो दिस लेंथ इज अगेन a/2 एंड दिस लेंथ इज आल्सो a/2। दैट मींस अगर ये a/2 है तो मैं इसको बोलूंगा क्या, a/2 साइन थीटा, और इसको हम बोलेंगे a/2 कॉस थीटा, किसे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, राइट। सो दिस इज व्हाट, a/2 साइन थीटा। तो एक्चुअली दो फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है अब वो बचा a/2 साइन थीटा, a/2 साइन थीटा, यहां पर भी सेम आएगा, राइट। सो दैट नाउ सी the force between these two we have find. Now the force of QR and PS, these two forces are equal and opposite in direction, hence they are get cancelled. ये दोनों opposite direction में होंगे और वो cancel हो जाएंगे, इसलिए हम इन दो फोर्स को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों, sum of these two forces is a zero, तो इसका कोई रोल नहीं है, राइट। सो हमने चारों का फोर्स फाइंड किया, इसका किया इनसाइड, इसका किया डाउन, इसका किया आउटसाइड, इसका किया अपसाइड, ये इनसाइड था ये अपसाइड था, दोनों इक्वल थे, hence they are cancel each other, तो उनका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। That means the force acting on QR and PS because of magnetic field B moving in a magnetic field B having current I in this case is zero, इसलिए मैं उनको यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई हैव मेंशन ओनली व्हिच इज रिक्वायर्ड, दैट इज F1 एंड F2। सो F1 फोर्स इज BIL बिल sin थीटा, बिल अगेन F2 फॉर दिस इज आल्सो sin थीटा। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू BL sin थीटा, बिकॉज़ बोथ आर सेम, दोनों ही ये सेम फोर्सेस हैं, राइट, सेम फोर्सेस हैं। नाउ आफ्टर दैट द टोटल नेट फोर्स इफ वी फाइंड एक्टिंग इन दिस बॉडी, देखिए ये पेन है, अगर मैंने इस पेन पर एक फोर्स लगाया तो ये मूव करेगा, बट लेकिन अगर मैं इसकी एक चीज फिक्स कर दूं और कहीं फिर से फोर्स लगाऊं, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू मूव, ये लीनियर मोशन नहीं करेगा, रादर देन ये रोटेटरी मोशन चला जाएगा, रिवॉल्व करेगा। व्हाट इट विल डू, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट करेगा बेटा, राइट। अगर मैंने इसको फोर्स लगाया एक पॉइंट को फिक्स करके तो लीनियर मोशन नहीं, जबकि ऐसा करने से लीनियर मोशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर मोशन, राइट, या मैं इसको लीनियर मोशन कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करूं और फोर्स लगाऊं एक एंड पर, सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज नॉट मूविंग अपवर्ड, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज मूविंग इन द रोटेशन फॉर्म। दैट मींस नेट force is a zero because of which it does not show any linear motion, but टॉर्क के वजह से यहाँ पे टॉर्क एक्ट होगा, क्यों, टॉर्क कब एक्ट हुआ, यहाँ पे देखिए टॉर्क मींस एक पॉइंट, अगर कोई पॉइंट फिक्स है और अगर आप वहाँ पे फोर्स लगाएंगे, सो दिस फोर्स क्रिएट्स अ टॉर्क, दिस फोर्स क्रिएट्स अ टॉर्क एंड दिस इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल वैसे जैसे आपने देखा होगा साइकिल का पेडल जो होता है, तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्स लगाते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन लगाते हैं, राइट। तो हम इसको बोल सकते हैं कपल ऑफ फोर्सेस भी है ये, कि एक बॉडी पर दो अलग अलग पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन पे, इन सेम वन बॉडी टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, व्हिच बोथ आर इक्वल अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस दे आर कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स। जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या शो करेगा, टॉर्क। नाउ लेट अस फाइंड द टॉर्क, फिर टॉर्क कितना होगा, दैट इज वी नीड टू फाइंड। तो जनरली हम टॉर्क को टाउ से इंडिकेट करते हैं, व्हिच इज नथिंग बट फोर्स ओके इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जो भी एक पॉइंट है वहां से, ठीक है, राइट। तो फोर्स हमारा हमें मिला है, राइट। सो दिस फोर्स इज व्हाट, BIL sin थीटा क्रॉस विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम इसमें देखें इस केस के लिए, इट इज जस्ट a/2 और कुछ एंगल बना दिया है जब, तो यहाँ पर 90 डिग्री, सो sin 90 इज 1, सो इट विल गोस, अगर 1 नहीं है तब ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला केस, राइट। सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस इज फोर्स एट सर्टेन एंगल थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज़ यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टॉर्क लग रहा है, वन फोर्स इज अपवर्ड, अदर फोर्स इज डाउनवर्ड, बोथ आर इक्वल अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। सो हेंस दैट इज BIL sin थीटा by 2,
This is my torque. So now इसको हम और लिखेंगे BIL A/2 sin theta. Now L into A, देखिए जरा, length into width, right? So this become area of a rectangle. So now torque is equal to BI capital A. Capital A is area, right? Area. Capital A is area. Okay, with sin theta. Now here this torque is because of only one side force. So I need to add another side force because two forces are acting. So that's why I'll add one more force called plus BIL sin theta A divided by sin theta and sin theta A divided by 2, right? So in this case 2 times, so can I say it is 2, right? So 2 because one torque acting at one end, another torque acting at another end. B? So now 2 to cancel here. Now L into A. What is L actually? For C. This is my coil. This is the length of the coil. This is the width of the coil. Area.